गौरमेंट ने सोचना चाहिए कि गरीब पे एक इ'यां 100 देना तो देंदा सही गल है बिठा आदमी चाह पींदा चाह पी उड़दा ते 30 रुपए महीने दे के कक्ख नहीं होंदे हुण तुस बड़े दिनें पिछले दिनें अपनी मांग रखन के असीं पक्का करो थोड़ी इत्थै कोई सुनने आया मेरे ने सुनाया कुछ सुनी नहीं आई खास कर जिते साडे एमएलए रामनगर दे सुनील बरदवाज और उन्हें थोड़ी गल ऊपर तक पहुंचाई ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਥਾ ਮਾਰੋ ਜਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਤੇ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਮਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਰਾਮਨਗਰ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਖੂਬ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਸ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧੇ ਕਰਦੇ ਸੋਨੀਆ ਮੰਗਾ ਪੂਰੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਾ ਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਮਐਲਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਥੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੀ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਮੰਡੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਜਾਈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਟੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਾਮਨਾ ਪੂਰਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਸਕੂਲ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਸਾਲੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚੁੱਪੂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਟਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੀਡਰ ਜਿੱਤੂ ਹੈ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਹ ਲੀਡਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬੀਡੀਸੀ ਡੀਡੀਸੀ ਬੀਡੀਡੀ ਡੀਸੀਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਦਿਓ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਆ ਸੁਣ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਜਿੱਲਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਰੇਲੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਲਾ ਮਸਲਾ ਗੁੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਲਾ ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਲਾ ਆਉਣਾ ਠੋਏ ਤੇ 2 ਵੇਲੇ 3 ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਠੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਾਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾੜਾ ਜਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾੜਾ ਕਿੰਨੇ ਰਹੋਗੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣੇ 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਠੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਠੀ ਤੇ ਬਲਾਠੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੋਗਾ ਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਢਨੇ ਉਹ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੋਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ 3 ਵਜੇ ਸੁਣਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਲ ਜੇਐਨਕੇ ਦੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਨੀ ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਮਨਗਰ ਆਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਵਾਦੇ ਸੜਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੇਣ ਅਗਦੇ ਹੁਣ ਮੰਗਣੀ ਥਾਣੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਲੰਘੀ ਅੰਗਟੀ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਮਸਲਾ ਲੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ मेरा नाम विष्णु देवी ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸਕੂਲ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ 2006 ਚ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਚ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਾ ਗੇਟ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਲੱਗੇ ਲਗਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਜ਼ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸੇ ਜਮਨ ਲੋਟੀ ਰਾਵਦੇ ਪਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਫਲ ਜਾਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਏ ਸੁਣਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਦਾ ਜਸਨ ਦਿੱਤੇ ਰੋ ਸਦਨ ਲੱਭੇ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੇ ਚਲਾਓ ਉਹ ਗਾਂਗਰਾ ਮੋੜਾ ਜਾते ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਫੁੱਟਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੌੜੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਸ ਕਰਾ ਦੇ केस नहीं देना चाहिए एमएलए साहब की ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ सोचने जितनी जी वे करना को साहब ने ठीक नहीं होती है कपड़े नहीं साथ हाथ सोने में पूरा हो सकदा यहां से स्कूल वास्ते जगह ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ जगह दी है सब अपना ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਿ 2006 ਚ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਅਬ ਕਿੰਨਾ ਫਸਲ ਨਿਕਲਣਾ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੇ ਵਜਾਣਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਜੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਥਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਘਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਲੋ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਅਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ 2-3 दफा ਦਿੱਤੀ जगह जी साहब क्या कहना चाहेंगे आप जम्मू से उठकर रामनगर आए हैं ऐसी क्या पड़ी आपको क्या लगता है रामनगर के अंदर जो लीडर है जो कोई भी है वो चैन की नहीं सो रहे सबसे पहले आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साथ ही साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे जम्मू वालों की कि हमें ऐसे लीडर नहीं मिले हमें ऐसे मंत्री नहीं मिले हमें ऐसे एमएलए नहीं मिले कि जो गरीबों की मसीहा बन के उनके पास दोबारा जा सकें इलेक्शन होने पे उनके घरों में मोहल्ले कोतों में जाके और उनके माता बहने बहन जी माँ जी चाचे मामे ताए सब रिश्ते दिखते हैं इनको जब इलेक्शन हो जाती है कुर्सी में बैठ जाते हैं अपना मुफाद अपना फायदा लेके दफ्तरों में बैठते हैं तो फिर उसके बाद ये कोई चाचे मामे ताए गरीब चाहे नहीं दिखते इनके पास सिर्फ डेट और तारीख पे तारीख होती है इनके दफ्तरों के बाद पीए टीए डीए वही दिखते हैं वो एमएलए नहीं दिखते आपने तारीख पे तारीख की बात की ये तो कोर्ट में चलता था आपको क्या लगता है रामनगर के अंदर लीडर भी चलाएंगे इसको देखिए जब मैं सबसे पहले यहाँ आया मैंने इनसे यही सवाल पूछा सबसे पहले फर्ज बनता है यहाँ के जो कंसर्निंग लीडर लीडरशिप एमएलए डीडीसी जो भी यहाँ पे हैं जो इनको एंटरटेन करते हैं उनका फर्ज बनता है कि इनसे पूछना कि मैंने पूछा कि आपको उनसे कभी बात हुई कहते हैं हमारी कोई बात नहीं हुई अरे यार मेरे एरिया में मैं कंसर्निंग कहीं का एमएलए होगा सबसे पहले पूछूंगा समस्या बताइए वोट आप लोगों ने दिए हैं मैं उससे कर्ज अदा करूंगा लेकिन कर्ज अदा तब करूंगा जब उनके बीच बैठूंगा आज जीते हैं आगे वाले आने वाले इलेक्शन में देखिए तब भी यही वोट डालेंगे लेकिन इनके चेहरों का रुख वैसा होना चाहिए जो आज उनके साथ अनदेखा हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर हम तमाम आल जेएनके दिल्ली विजय संघर्ष समिति की तरफ से मैं सन्नी कांची चेयरमैन होने के नाते जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले 16 तारीख के बाद
सेक्टर का घेराव होगा, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसील के लोग वहां पे मेरे साथ मौजूद होंगे। जिसने रोकना रोक लीजिए, जिसने बंद करना कर लीजिए, लेकिन अपने लोगों का इंसाफ लेने के लिए पीछे कभी नहीं हटूंगा, ये मेरा वादा है। और इनके साथ, इन गरीबों के साथ मुझे इनकी दुआएं चाहिए। तनख्वाह ये लोग लेंगे, फैमिली अच्छी ये गुजर बसर करेंगे, हम नहीं, लेकिन मुझे इनकी दुआएं चाहिए, क्योंकि मेरे जम्मू कश्मीर की मिट्टी के लोग हैं। हमें वो ये अनदेखा हो रहे हैं यहाँ पे, और प्रशासन और मिनिस्टर मंत्री अपनी कुर्सियां, अपने बंगले चमकाने में लगे हैं, इनकी फैमिली, इनका फ्यूचर चमकाने में लगे। दुख है इस चीज को। बिल्कुल सर, ये तो हमने सुना था कि गरीब सिर्फ वोट बैंक के लिए है। आपको नहीं लगता कि रामनगर के लीडरों ने ऐसे साबित कर दिया? देखिए, रामनगर की बात हो, चाहे रियासी की बात हो, रामबन की, सांबा, कठुआ, बिश्नौर, हर जगह की, जहां जहां भी गरीब है वो गरीब पिसता है। वो चाहे चक्की की पिसाई वाला हो, चाहे राजनीति की पिसाई वाला हो, वो पिसता है। गरीबी की, गरीब जो उनकी, मैं तो बोलता जा रहा हूं कि कभी कभार आप भी अपना रुख ऐसा बनाइए कि उन लीडरों पर लगे जो आपको हर इलेक्शन में 500 राशन या शराब की बोतल देके आपको खरीद लेते हैं। मत बिकिए। अगर आप एक बार बिकेंगे तो 5 साल आपके जो दरवाजे बंद रहेंगे, और अगर आप बिक गए तो समझो आपका जो फ्यूचर है, जो आने वाला कल है, आपके बच्चों का भविष्य, वो बिक गया। अपने बच्चों का भविष्य ना बेचिए उस चंद पैसे के लिए, उस चंद क्वार्टर के लिए, उस चंद राशन के लिए। अगर आपको भविष्य बनाना है तो ऐसा नेता चुनिए अपना कि जो गरीबों का मसीहा बन के उनके साथ बीच में खड़ा रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो लोग शराब पे या चंद पैसों पे बिके थे, उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। सिस्टर जी, क्या नाम थोड़ा? हाँ जी, मेरा नाम अनीता कुमारी है। तो उस भी इस डिपार्टमेंट जो? हाँ जी, हाँ, मैं भी कुकू उधमपुर से आए हम यहाँ पे। तो हम इसी मसले पे काफ़ी लंबे समय से हमारा यही मसला चल रहा है कि ये 30 रुपये जो है वो हमें डेली 30 रुपये के लिए बोला जाता है कि 30 रुपये आपकी डेली की दिहाड़ी है। तो 10 मतलब साल में 10 महीने का मिलता है। तो 10 महीने में भी उनके पास, गवर्नमेंट के पास 30 रुपये नहीं है कि हमें वो 10 महीने में इकट्ठे करके वो भी दे पाएँ। और हमारा काम ऐसा है जिसको बोलते हैं कि हमारा जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, ये हमने डेली करनी है। चाहे उसमें हम बीमार हो, बुखार हो, कुछ भी हो, जैसे ये बुजुर्ग हैं, जैसी भी कंडीशन हो, हमने स्कूल आना है और खाना बनाना ही बनाना है। तो हम अपना काम इतनी लगन से कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो गवर्नमेंट को हमारी ये डिमांड जो है, जो हमारी जो हम बोल रहे हैं कि हमारी पे बढ़ाई जाए, हमें रेगुलर किया, उनको नहीं दिख रहा है। तो काफ़ी समय से हम चल रहे हैं। हमें एक उम्मीद से जुड़ी हुई है कि जैसे हमारे साथ सनी भैया जम्मू से, जहाँ भी हम बुलाते हैं इनको, जब भी हम बुलाते हैं तो ये भी हमारे साथ चलते हैं। जैसे हम हर कंडीशन में स्कूल जाते हैं, वैसे ये भी हमारे साथ हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े होते हैं। तो हम एक सवाल ये है, आपको अपने घर में होना चाहिए था इस वक्त, क्योंकि आपने लीडर चुन के आगे भेजे हैं, जो उनका फर्ज है कि आपकी बात को आगे रखें, लेकिन कहीं ना कहीं वो लीडर अपने घर में या कुर्सियों में बैठकर चैन की नींद सो रहे हैं, और आप लोग जहां ग्राउंड पे अपनी मांगे मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ही आपसे वादे किए थे? देखिए, लीडर जो भी बनते हैं हमारे, जैसे जो हम गरीब हैं, हमें तो ये लगता है क्योंकि उनके बच्चे अगर खुशी से जी रहे, गाड़ियों में घूमे, हमारे बोर्ड छोड़ लेके मजे से जैसी मार रहे हैं, तभी वो दोबारा नहीं आते हमारे पास, क्योंकि उनको लगता है इनसे बोल लिया, हम जीत गए, फिर ये कौन और हम कौन, हमें वो फिर अनदेखा ही करते हैं। क्योंकि फिर जो गरीब होता है वो बेचारा डर जाता है कि कहीं ना कहीं लीडर हमारे पास खुद आएगा, हमारी मांग को पूरा करेगा, हमारी बात को आगे ले जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कब से चल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई लीडर होता तो हमें आज रोडों पर नहीं होते, हम भी घर में होते, जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे से काम कर रहे होते, ऐसे हम दर बदर भटकते नहीं थे। इसलिए हम घर से निकलेंगे, चलो जो लीडर बने हैं वो तो कुछ करेंगे, तो है नहीं, हमें लगता है। आखिरी सवाल, आप पिछले 5-6 महीनों से दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर वक्त रहते आपके मसले का हल नहीं हुआ तो आगे आपने क्या सोच के रखा? हम 5-6 महीने से नहीं सर, काफ़ी समय से चल रहे हैं ये लीडर, जो सरकार जो पहले थी, अब जो नई बनी है, उससे पहले क्या कोई 5-6 साल हो गया हमने यही धरने प्रदर्शन करते हुए। तो फिर यही चला कि जब नई सरकार बनेगी, जब सरकार बनेगी, सबसे पहले काम यही होगा, जो गरीब हैं, जो डेली बेस हैं, जो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, जिनकी तनख्वाहें जो कम है, उनका जो मसला वो पहले हल करेंगे। अभी तक तो कुछ हल हुआ ही नहीं है। तो हमें यही लगता है ना कि सरकार बोल लेके अपने आराम से नींद सो रहे हैं, गरीबों का कोई मसला हल नहीं कर रहा है। इसलिए हम भैया के साथ चलेंगे। तो हमें इनको इतनी दूर से बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने लीडर चुने तो उन्होंने अपना काम भी अच्छे से करना चाहिए ना। तो वो कोई कर नहीं रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो बोलते, जो गरीब के साथ चले, जो मतलब अच्छे से उनकी मांग जैसे सुन रहे, आगे पहुंचा रहे, तो हमें इन पे ही उम्मीद है। हम यही चाहते हैं कि इनके साथ ही चलेंगे, तभी हम आखिरी दम तक वहां तक पहुंच पाएंगे। और हमने ये ठाना है, और भैया ने ये सोचा कि जब तक हमारा ये मसला हल नहीं हो जाता, हम ना पीछे हटने वाले हैं और ना ही रुकने वाले हैं। तो यहाँ तक ऐलान आपने कर दिया है कि बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा। सरकार को बता दीजिए, लीडरों को बता दीजिए, वो प्रदर्शन कहाँ होगा और कब होगा? 16 तारीख के बाद जो भी हम दिन डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैं मीडिया चैनल के माध्यम से एक्सपोज कर दूंगा वो डेट और टाइम। तो ऑलरेडी पहले से भी हमें घर से अरेस्ट किया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है, हम वो ओपन नहीं कर सकते। अनऑफिशियली मैं सबको मैसेज पहुंचा दूंगा। लेकिन जम्मू के अंदर सेक्रेटरी का गिराव होगा, और गिराव होने के बावजूद हम उनको यह दर्शाएंगे कि हम लोगों का फैसला कीजिए, वरना हम यहां से नहीं हटेंगे। और अगर आपने इतनी सी भी आनाकानी की या चूक की, तो यूं समझिए जितने लोग हमारे साथ आए होंगे, हर तहसील में फोन जाएंगे और उनके फैमिली जो है बच्चों के समेत घरों के बाहर निकलेंगे। लेकिन अपना हक मिड डे मील कुक का, CPW का, लैंड डोनर्स का, और हमारी और भी जो मुद्दे हैं वो पूरा करवा के रहेंगे। और आज रामनगर के अंदर इनसे मीटिंग करके इनके साथ भी जो है पुख्ती बात हमने कर दी है। और जितने भी यहाँ 500-700 की तादाद में यहाँ रामनगर के अगर मिड डे मील कुक हैं, CPW वर्कर हैं, वो तमाम भाई साहब हमारा सुन ले कि तैयार रहो अपनी लड़ाई लड़ने।